Hello everyone, and guys, welcome to the channel and welcome to your another important सक्सेस स्टोरी सेशन जहाँ पे हम आपके साथ जो भी टॉपर्स हैं उनको आपके साथ रूबरू करते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या उनकी एक जर्नी रही थी। और उस जर्नी से आई थिंक जो भी एस्पिरेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं बहुत ज़्यादा एस्पायर हो जाते हैं कि हाँ, हमें भी क्या करना है अपनी प्रिपरेशन में, और आप इनसे काफ़ी चीज़ें सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हैं रैंक 23rd who has cleared the EOA examination, that is Mr. Prakhar. So first of all, heartiest congratulations to Mr. Prakhar. If I talk about him, he has done a Bachelor of Chemical Engineering and is currently serving as or is presenting his valuable contribution to the Indian Meteorological Department and is placed in Shillong. इसके साथ एक चीज और है इनके साथ जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट करेंगे, यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट। ये भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, इन्होंने मेंस भी दिए हैं, काफी बार 3 मेंस लिख चुके हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है इनके बारे में और काफी चीजें आप इनसे सीखोगे। तो वेलकम प्रखर टू द चैनल। Thank you, sir. Thank you for wishing and thank you for your support. Especially EduTap helped me literally while during my interview preparation. So thank you. So Prakhar, first of all, my I would say that I these are questions that I generally do not ask generally ask to the banking aspirants, but मुझे आप में ना ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। What inspired you to shift from your engineering background, because you were placed in your you got placed, आपकी कॉलेज प्लेसमेंट भी हुई थी। उसके बाद आपने उस कॉलेज प्लेसमेंट को छोड़ के आपने अपने आप को शिफ्ट किया towards the public services. So what made you inspired to shift from the job that you're doing, नहीं ये नहीं करना, सिविल सर्विसेज करना है। Uh, जी एक्चुअली हुआ क्या था कि आफ्टर माय कॉलेज आई गॉट प्लेस्ड बट आई फाउंड दैट जॉब वेरी मोनोटोनस एंड आई थॉट दैट ड्यूरिंग माय सिंस माय कॉलेज डेज आई वाज प्लानिंग टू गिव यूपीएससी सीएसई पब्लिक सर्विसेज बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब so when I got the chance I decided let's do it means now it's the time because if time goes and then if I stuck into the private sector I won't be able to prepare so I started my preparation just I left the job after 4 or 5 months and I started preparing for it. So it was not the inspiration. Actually, I always wanted to be in it. एक चीज और है, जैसे आपने बोला कि मैंने डिसीजन लिया और बिकॉज यू वर रियली डूइंग गुड। अब यहाँ पे आके ना एक बहुत बड़ा डाउट क्या आता है कि काफी बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना मास्टर्स कर लेते, है ना, Mhm. क्यों ना कुछ और कर लेते। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑल दिस रोल प्लेज अवर फैमिली। तो Mhm. हाउ वाज योर फैमिली सपोर्टिव? देख ठीक है, चलो ठीक है, गुड डिसीजन, आप कर लो यूपीएससी, या वाज देयर समथिंग कि नहीं नहीं, बहुत रिस्की टास्क है, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो? Mhm. Initially, though, my father was like, "No, no, you should continue in this job because he has some personal experience because in a family that someone has tried UPSC but could not clear it. So he has a very bad experience with this exam. So he said, "नहीं नहीं मतलब नहीं करते हैं. Let's continue in that और मत छोड़ो because currently what we are seeing in India there is a lack of jobs. People are मतलब lots of people youths are unemployed. So leaving a job it's a very big decision for anyone means." But तो initially थोड़ा था कि my father was saying no no you don't leave this job but still you can say I rebelled in my family नहीं नहीं prepare करना ही है so my mother and my brother supported me मतलब even my father later supported me but initially he was like because every parent want that their child should have stability in life and security in their life safety and if you're leaving the job you're losing that stability and security so might be he has that thing in my mind that's why he's saying don't leave the job so initially there was but later everything became in my favor. और जब आपने पापा को बोला और आपने जैसे बोला कि आई थिंक इन हिज फैमिली, इफ यू कैन इलेबोरेट अ लिटिल बिट अबाउट दिस थिंग, के पापा को क्यों लग रहा था, मतलब क्योंकि जनरली देखिए अगर मैं बात करूं यूपीएससी समथिंग इन विच जनरली वेन एवर अ स्टूडेंट गोज द Mhm. फैमिली हैज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ऑलवेज इन द माइंड। नॉर्मल केस में भी होगा ही होगा कि यार आप इतनी अच्छी जॉब में हो, और यूपीएससी डज नॉट गारंटीड योर सक्सेस, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। इफ यू pick up a success in a first attempt, you are like on a cloud 9. बट इफ Mhm. देर इज अ सॉर्ट ऑफ 1 साल 2 साल 3 साल हुए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम पे तो प्रेशर होता ही होता है। आई थिंक फैमिली गेट्स मोर प्रेशराइज्ड। सो व्हाट वाज दैट थिंग दैट योर फादर इनिशियली टोल्ड यू के दिस इज द रीजन आई वांट, कि नहीं अब रहने दो अभी? Because I thought that मेरे जो grandfather थे, he tried to prepare for this exam in her age, but despite that he could not clear. I think वो इलाहाबाद में भी रहे थे और 5-6 years की preparation भी की थी, but he could not clear. So because of that, my father in his childhood faced some
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो उनके अंदर ना देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर इज अ अनविलिंगनेस कि नहीं नहीं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, बिकॉज आप कंफर्म नहीं है कि आप क्लियर कर पाओगे, देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी, इट्स वी कॉल दैट यूपीएससी एज अ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, so it's highly unpredictable, you cannot predict in which phase you will be out, either you will be, either if you have cleared the prelim, you may be out in mains, you may be out in interview, then you again have to start it from the A, you have to again start from A. So एक vicious cycle create हो जाती है, because interview के जब तक रिजल्ट आते हैं तब तक prelim के डेट्स आ चुकी होती है, मींस आफ्टर आई थिंक 1 मंथ के बाद आपका prelim होता है, और हमने जब दिया था तो दैट वाज इन द कोविड-19, सो आई थिंक लाइक इंटरव्यू का रिजल्ट आता था और उसके जस्ट एक वीक बाद आपका प्रीलिम्स होता था, so literally becomes a vicious cycle. So that's the reason that my father was reluctant ki, because he has some past मतलब difficulties or trauma you can say, that नहीं नहीं मत करो, but still later means फिर I was bit rebel और थोड़ा जिद्दी, थोड़ा stubbornness दिखाई था, तो जब तो yeah. आपने अपना जिद्दीपना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपके फादर ने तो बोला कि मेरे को तो चाहता हूँ कि निकलो, तो आपने प्रिपरेशन तो कहाँ पे स्टार्ट की और कैसे रही आपकी यूपीएससी की जर्नी, कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली जब भी जैसे हमने कंपनी ज्वाइन की थी, मतलब अपनी पहले वाली, सो आई हैव दिस हैबिट कि आई कैन नॉट सिट विदाउट स्टडिंग, मींस आई नीड समथिंग, मतलब माय माइंड नीड समथिंग, सो जैसे ही अब इंजीनियरिंग खत्म हुई तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू स्टडी, सो अब ज्वाइन करने के बीच में देयर वाज 2 मंथ पीरियड, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई डाउनलोडेड सम एनसीईआरटी बुक्स एंड स्टार्टेड रीडिंग दैट, मतलब इवन आई विल टेल यू व्हेन स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, नो वन विल बिलीव आई डोंट नो व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आई वाज, मतलब ऐसा हो जाता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिर्फ इंजीनियरिंग आती है, वो एक फ्रॉग इन द वेल वाला एटीट्यूड होता है कि कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं, बाकी कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, यू डोंट इवन, आई डोंट नो, मतलब हाउ मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नो कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, हाउ प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड, आई थिंक ये बहुत ही जनरल चीजें हैं, और मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई वाज लाइक, आई वाज द वन अमंग देम कि हमें नहीं पता था कि बेसिक चीजें, बहुत बेसिक, सो जब स्टार्ट की प्रिपरेशन तो नई नई चीजें मिली उस टाइम पे, तो बहुत कुछ सीखने मिला, फिर इवन मैं व्हेन आई वाज वर्किंग, सो my job was 8 hours job, तो उसके बाद भी आके I used to study in the night at least 3-4 hours, that time I download मतलब ordered GC Leong and Lakshmikant, then I decided कि आप full time आपको देना पड़ेगा, because without that you can't prepare for UPSC CSE, क्योंकि CSE demands at least 10 to 12 hours of preparation, क्योंकि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग थ्रू सेल्फ स्टडी, मतलब स्टार्टिंग में आई डिड माय सेल्फ स्टडी, मतलब सब कुछ हमने खुद ही पढ़ा है, सब चीजें एक एक चीज को समझने तो टाइम लगता था, सो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू माय होम आई वेंट टू माय मैटरनल अंकल होम कि चलो वहां रह के पढ़ेंगे शांति से कुछ दिन अलग घर से, तो देयर आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एक्चुअली इन सागर मध्य प्रदेश। आई थिंक दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला है प्रखर के विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जैसे आपने बोला आई थिंक मैनी ऑफ द एस्पिरेंट माइट आल्सो रिलेट, बिकॉज बहुत बच्चे अभी भी ऐसे होंगे हु इज एस्पायरिंग, मतलब ऑब्वियसली जो यूपीएससी वेंटेज वेटरनर है उनको तो लगता है कि हमें ये चीजें पता है तो हमें लगता है बहुत आसान है, पर जो बच्चे शायद यूपीएससी एस्पिरेंट से नहीं है, अभी अभी ग्रेजुएट हुए होंगे, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इन केस ऑफ ईओ एग्जामिनेशन या फिर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें इन टर्म्स ऑफ कि अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज बहुत बच्चों को लगता है हम ना यार स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, जीसी लियोंग पढ़ लेते हैं या फिर रमेश सिंह पढ़ लेते हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज टू नो अबाउट दी स्टैंडर्ड बुक्स अ लॉट, बट आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द बेसिक अप्रोच जब आप इस चीज को इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस? द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक थिंग इज स्टार्ट विद एनसीईआरटी, कोई कुछ भी बोले जस्ट स्टार्ट विद एनसीईआरटी, आप सारी बुक स्टैंडर्ड बुक्स को हटा दो, पहले आप 6 क्लास की एनसीईआरटी से बिगिन करो, जस्ट नो कि आखिरकार, क्योंकि आपको अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यू आर लाइक 6 क्लास स्टूडेंट, यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जब तक नहीं पता होगा, यू कैन नॉट गो टू द प्लैनेटरी विंड्स, यू वोंट एबल टू अंडरस्टैंड देम, जीसी लियोंग में इट्स नॉट फ्रॉम द बेसिक, नीदर द लक्ष्मीकांत इज फ्रॉम द बेसिक, यू शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जस्ट रीड डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट कर, मतलब आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इट विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 months फॉर यू टू गेट ओवर इट, टू गेट अंडरस्टैंड इट, the newspaper reading is must and the basic NCERT is must, मतलब your building block is this only, even अगर आपको बताएं तो जब मैंने अकाउंटिंग के लिए प्रिपेयर किया था तो आई हैव नो बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब दूर दूर तक अकाउंटिंग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, देयर इज नथिंग, मींस अकाउंटिंग इज ग्रीक फॉर मी, so when I started my this accounting preparation, I started with 11th class NCERT, the most basic NCERT, क्योंकि इसके पहले अकाउंटिंग पढ़ते नहीं हम लोग, 11th क्लास से स्टार्ट होती है, so I started my preparation from 11th class NCERT, I read 11th class NCERT at least 3 to 4 times, then I same thing I did for 12th class NCERT,
Then I went to some notes from some other books from IGNOU. But and most of the questions are directly asked from NCRTs. So this I would suggest every aspirant. एंड नाउ व्हेन यू स्टार्टेड दिस थिंग, जैसे आपने बोला एनसीईआरटी पढ़ा या मैंने ये पढ़ा, मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है कि आपका रूटीन क्या रहता था विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड देन आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स, आई विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन ऑन हाउ दिस प्लान बिकेम्स। बट जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एक क्या डेली रूटीन था? बिकॉज अब आप कह रहे हो कि मैंने जॉब भी छोड़ा था, यू वर बेसिकली अ काइंड ऑफ अ एस्पिरेंट जिसके पास पूरा टाइम है, एंड आई वुड बी हम्म, सीइंग दैट देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जिनके पास टाइम बहुत होता है, बट एक वो हम्म, गाइडेंस होता है ना, अगर वो सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन खुद ही की है। यू हैव नॉट गॉन टू हम्म, एनी इंस्टीट्यूट, यू हैव नॉट रेफर टू एनी यूट्यूब वीडियोस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू प्रिपेयर जस्ट ऑन योर ओन। सो व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर दो स्टूडेंट्स, कितना घंटा प्रिपेयर करें? व्हाट शुड बी द इनिशियल थिंग कि यार एक ऐसा काइंड ऑफ एक ऐसा प्लान बन जाए हमारे पास कि इस प्लान पे आप वर्क करो तो काफी इजी हो सकता है आप उनके लिए। जैसे कि देखिए, प्लान तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आपके पास जितना देखिए, देयर इज अ टू थिंग। हम लोग बोलते हैं हमें अपने बाकी कामों से पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, एंड द सेकंड थिंग हमें बाकी कामों के लिए पढ़ाई से टाइम निकालना है। सो यू शुड बी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको बाकी कामों के लिए अपनी पढ़ाई से टाइम निकालना है। योर पढ़ाई और स्टडी शुड बी योर प्रायोरिटी। So when I started my preparation, my sleep, matlab, I'm not a night owl. I don't study in the night. Matlab, after 12 o'clock, my book will be closed, and I will wake up at 5. Means it's like दिन में ही पढ़ना है जितना पढ़ना है, रात में कुछ नहीं पढ़ना है। रात में I will sleep. और sleep is must, means even before my prelim exam I have heard people saying कि वो रो नहीं पाते हैं, but I am the person who will sleep. I will take my full sleep. I won't, मतलब रात हम बर्बाद नहीं करेंगे। I'm revising continuously in the night and doing, oh now I'm taking my so much tension stress. I won't. I will sleep even before my interview date. I slept. I didn't study even before. One day just revised the things which I have wrote in my book. Just revised those things, and I slept. Oh, means I slept at 10 o'clock. I think 9 or 10 in the night, and I woke up at 5. So I took full sleep. So मेरा preparation का start होता था, I start at 6 o'clock, मतलब 7 o'clock most probably I will start. And first what I will do, I will read current affairs, newspapers. So by 10 I will complete my newspaper, because initially आपको मतलब I used to read newspaper also, Indian Express and The Hindu both. I will make note of prelims notes, short notes बनाने होते थे. So that I used to do. I used to write my current affair. I used to use notes of current affairs. After 10, for 10 to after 10 to 11, I will read one subject, any of the subject which I want to read. I will read that. At 11 I will मतलब उठेंगे, and I will do my daily work, and after I will take lunch along that. Then I will start my preparation from at 1 p.m. Means 10 to 1 I will 11 to 1 for 2 hours I will take my bath, and I will take lunch and everything. That 1 to 4 I will study one subject. Okay, and after 1 to 4 I will take at least 1 hour sleep. I will again 4 to 5 or 4 to 5:30, because that's become necessary for you. At 5:30 I will again wake up, and I will write some answers. मतलब for 1 hour I will write some answers at 5:30 to 6:30. Then 6:30 to 8 o'clock I will read another subject, second subject. Then I will at 8 o'clock to 9:30 I will take my dinner and interact with my family. I will sit with my family. At 9:30 to 11 o'clock I will study optional. So this was my routine. अरे दिस इज समथिंग रियली गुड, बिकॉज जितने प्यार से आपने बताया है कि स्लीप इज समथिंग दैट अ पर्सन मस्ट वर्क ऑन, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, सो आई माय क्वेश्चन इज दैट इन टर्म्स ऑफ इफ यू लुक एट दिस एग्जामिनेशन, specifically this EOA examination, the important point here is that if you look at the questions here are little bit factual. It's not a general UPSC examination where we used to see that analytical questions are being asked. यहाँ पे क्वेश्चन काफी फैक्चुअल नेचर में आते हैं। तो जब आपने शिफ्ट किया, बिकॉज आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिगार्ड्स टू दैट, व्हाट इज द टाइम व्हेन यू थॉट दैट ओके दिस इज द टाइम देन आई शुड मेक माय प्लान बी विद रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशंस लाइक EOAO और IMD जो भी आपने एग्जामिनेशन दिए थे, क्या एक रीजन था उसका? मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये होगा। सेकेंड क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंटिंग टू देम इज दैट in terms of current affairs, as you were mentioning, what is the different approach you have changed in terms of the current affairs preparation? Coming to the first question, when I could not clear the third time, so that was very depressing for me. Matlab, I was literally shattered. I gave my 100%, but still I was not able to clear that exam. So अब
मतलब आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट आई लिटरली स्टार्टेड थिंकिंग कि आई हैव टू डू समथिंग मोर, मतलब कुछ अलग फोकस करना जरूरी है, बिकॉज आई कैन नॉट सिट, बिकॉज दैट्स बिकमिंग द विशियस साइकिल। और हमें पता था कि आई वोंट बी एबल टू क्लियर इवन फर्दर, बिकॉज अब आपके अंदर ना एक टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है। आई हैव टू क्लियर समथिंग, यू कंटिन्यूअसली इन योर माइंड दिस थॉट विल बी circulating, I have to clear this exam, and you won't be able to focus because now you are studying with a pressure. And when you study with a pressure, not with a fresh mind, things don't get into your mind. So that day I decided ki now third after I won't give prelim until I had a job. So that day I decided I should have plan B. And at the same time, then October this job of SSC, this IMD came, and in the February the notification of EOU came. I failed both examination. I gave this currently which I am working in December 16, and February 22 this came. So I started preparing for this. So this was my that day after I'm not able to clear the third attempt, I decided that I won't give prelim until I have a job. My mind is calm. So और कमिंग टू दिस द करंट अफेयर पार्ट, इसके लिए करंट अफेयर के लिए आपको फैक्ट थोड़े देखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको बहुत, अगर फैक्ट के लिए ना बहुत अच्छा एक तो सोर्स है पीआईबी, बहुत थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगता है हमें पीआईबी, बट व्हाट यू डू जस्ट आप मंथ 6 मंथ के एटलीस्ट, जैसे एग्जाम होने वाला है जुलाई में, तो पीछे 6 मंथ के क्वेश्चन करंट आप फैक्चुअल क्वेश्चन पीआईबी से देख सकते हो। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। और यू कैन रेफर टू यूट्यूब वीडियोज ऑफ कोचिंग, मतलब जैसे हमने एजू टाइप की वीडियोस को, करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियोस डालते हैं उनको हमने रेफर किया था। तो वहां पे आपको मतलब हमने ऐसा किया था, हम डेली नहीं देखते थे, जब जैसे एग्जाम पास आने लगे तो हमने पिछले 6 मंथ के वीडियोस मतलब देखना स्टार्ट कर दिए थे। सो दैट हेल्प मी अलॉट, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि हम उसके नोट्स बनाए थे एक्चुअली, मतलब आई मेड अ नोट सो दैट आई कैन रिवाइज इट। तो 6 मंथ के हमने वीडियोस देखे थे विद अलॉन्ग विद पीआईबी। एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, इफ आई टॉक अबाउट हियर स्पेसिफिकली, जैसे आपने बोला कि अगर मैं ईओयू की बात करूँ, इस टाइम का ईओयू का पेपर वाज मे बच टफर। जैसे हम हाँ। पीवाईक्यूज की आप बात करते हो, तो अगर मैं पिछले एग्जाम्स की बात करूँ तो पिछले साल, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 2017 एंड 20 एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स वर मैनेजेबल। दिस हम्म। ईयर इन द ईओयू एग्जामिनेशन, इफ आई कंपेयर दिस पेपर, तो इस बार तो भाई करंट अफेयर्स बहुत ही, मतलब एक एक साल पुराने भी आए थे। कुछ फाइनेंस इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लॉस के ऊपर, कुछ जो इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट हैज टेकन उस पे क्वेश्चन आए थे। तो हाउ यू वर एबल टू कॉप अप विद दोस क्वेश्चंस? बिकॉज जैसे आपने बोला, मैंने 6 महीने की वीडियोस देखी, मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखी, बट क्योंकि सरप्राइज वाज दैट द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स वर वे बियॉन्ड। मतलब ईपीएफसी में तो 6 महीने के बीच बीच में काफी क्वेश्चन आए थे, बट उसमें ईओ में बहुत क्वेश्चन 7 महीने, 8 महीने, एक साल पुराने थे। तो आपने लोग कैसे मैनेज किया? यू लेफ्ट दोस क्वेश्चंस और यू वर दिस थिंग कि नहीं, इसको इस तरह से कर लेते हैं मैंने। एक्चुअली ना आपका जैसे वेल यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम गिविंग, तो आपका ना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रेकलेस ऑप्शन मार्किंग पे जाए, कि आपको नहीं भी आता है स्टिल यू आर मार्किंग द ऑप्शन, बट देयर इज ऑलवेज वन सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और उस पे ना आप क्या कहते हैं गैस लगा सकते हो, एजुकेटेड गैस आप यूज कर सकते हो। तो इन केस ऑफ करंट अफेयर, अगर हमने पीछे जैसे कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, तो एक बैकग्राउंड था, आई नो द करंट अफेयर्स की ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो मार्क किए होंगे। इफ आई डोंट नो, आई हैव नॉट मार्क दोस क्वेश्चंस। और बट कमेंट टू अदर, जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट है, अगर मान ली करंट अफेयर्स आपका छूट रहा है, तो आपने लेबर रिलेशंस तो अच्छे से किए होंगे, तो आप वो पार्ट सॉल्व करो। इटली आपका जो पार्ट अच्छा है, फर्स्ट फोकस ऑन दैट। और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन या ये हम सही हो सकता है, मतलब इफ एबल टू एलिमिनेट, देन यू एबल टू डू दैट। आप रेकलेस ऑप्शन मार्किंग मत करो, मतलब कि नहीं भी आ रहा है स्टिल यू आर डूइंग दैट, नहीं नहीं अब देख लेते हैं, पर नहीं करंट मतलब कट ऑफ निकला कि नहीं निकला। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग दैट पेपर इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स, पेपर इज डिफिकल्ट, तो वो कट ऑफ अपने आप कम जाएगा। एंड दैट, आई थिंक दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रखर ने बोला है, कि अगर पेपर डिफिकल्ट है, जो जो जनरली आई थिंक हम लोग हमेशा ही बोलते हैं, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो शायद सभी के लिए डिफिकल्ट होगा। तो इट इज नॉट समथिंग कि मैं बोलूँ कि आप किसी को टेंशन लेनी चाहिए, स्ट्रेस लेना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग प्रखर, जैसे आपने मेंशन किया कि जब आपने यूपीएससी से स्विच ऑन किया टू द ईओयू, तो यू मेक इट एज अ प्लान बी हियर। Now, my question is with respect to your plan B, when you've decided this thing, obviously there are some points in your mind which will make you feel कि okay, this is something I should opt, because यूपीएससी है तो कहीं ना कहीं ईओयू भी यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो हमें लगता है कि काफी चीजें सिमिलर, काफी टॉपिक सिमिलर हैं। बट इनमें तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, हम्म। वी हैव इंश्योरेंस, हम्म। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, तीन। और आई कैन से लिटिल बिट अबाउट लेबर लॉस, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉस, जो कि जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं इन दी यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये भी अगर एक ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो एक तो जैसे कहते हैं ना, एक तो चीज होता है मुश्किल,
एक होता है सोने हम्म पे सुहागे, मुश्किल पे और बड़ी मुश्किल है कि एक तो वो चीज़ हम वैसे ही नहीं हमने पढ़ी कभी, और फिर उसको हम्म पढ़ना भी है। और टाइम स्पेंड में मैं बात करूँ तो इट्स नॉट दैट इज समथिंग जो हम लोग डेली कर रहे होते हैं, तो एक टाइम स्पेंड का टेंशन भी कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स दीज टॉपिक स्पेसिफिकली? बेसिकली अकाउंटिंग के लिए जैसे हमने बताया कि आई प्रेफर्ड एनसीईआरटीज। और अगर आप 11 12 की एनसीईआरटी कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो सिलेबस में दिए हुए। फॉर लेबर रिलेशंस उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज लेबर सारे लॉस को डाउनलोड करके उनके शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे। डीओसी फाइल में आई मेड शॉर्ट नोट ऑफ एवरीथिंग, मतलब सारे लेबर लॉस के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए उनको और इलेबोरेट करना कि व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड द लेबर रिलेशंस, उनके बीच में जो पूरी थ्योरी दी गई है, फिलान्थ्रोपी थ्योरी है वगैरह, उनकी पूरी डेफिनेशंस गूगल से हमने सर्च करके। सो आई मेड अ डीओसी फाइल ऑफ एवरीथिंग, मीन्स हमने सब कुछ सर्च गूगल पे किया जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड, या फिर अगर हम टेस्ट सीरीज कोई लगा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज तो उससे रिलेटेड अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछे गए लेबर रिलेशन रिलेटेड तो उसको पूरा अपना एक फाइल में करना। दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिर आपको प्रीवियस ईयर अगर आप कर देखते हो और फिर आप टेस्ट सीरीज अगर कोई लेते हो कोचिंग की तो उससे आपको पता चल जाएगा। सोशल सिक्योरिटी गोज विद सेम थिंग कि आपको जितने भी रिसेंट में जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है रिसेंट में सारी, उन सब के आप नोट्स एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत शॉर्ट। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या है सोशल सिक्योरिटी के, जो डीपीएसपीज वगैरह है, उनको आप याद कर लीजिए। और ऑडिटिंग के लिए आई हैव वेंट फॉर इग्नू नोट्स। ऑडिटिंग के लिए इग्नू में एक देयर इज अ, आप अकाउंटिंग में जाएंगे तो एक ऑडिटिंग के कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो वो आप डाउनलोड करके आप उससे बेसिक ऑडिटिंग आप पढ़ सकते हैं। तो उसके भी आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, मतलब फॉर एवरीथिंग यू क्रिएट योर शॉर्ट नोट, रीड फन फर्स्ट टाइम, क्रिएट योर शॉर्ट नोट एंड रिवाइज दो शॉर्ट नोट्स मैनी मैक्सिमम टाइम फ्रिक्वेंटली, जिससे कि आपको याद हो जाए। सो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, बट डेफिनेटली यू कैन क्लियर इट। बट आपने जैसे एक पॉइंट मेंशन किया कि मैंने लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज, या फिर मैं बात करूं कि आपने सोशल सिक्योरिटीज की जैसे आपने बात की, तो माय पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉस, बिकॉज लेबर लॉस बहुत बड़े हैं, कोड है बड़े बड़े। तो आपने क्या पूरा पूरा कोड पढ़ा, यू वेंट फॉर अ समरी, बिकॉज यू सेड यू मेक अ नोट्स, दैट इज समथिंग दैट्स रियली गुड, बट आपने उसको नोट्स बनाने के लिए आपकी अप्रोच क्या थी? कि आपने पूरे पूरे कोड पढ़े, या यू गो विद अ समरी कि अच्छा इस चीज पीवाई क्यू उसको एनालिसिस कि इसमें से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, शायद इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा? फॉर न्यू लेबर कोड जैसे हमने मैक्सिमम हमने पढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि इट वाज प्रोबेबल कि उनसे क्वेश्चंस कुछ ज्यादा आ सकते हैं। बट फॉर ओल्ड आई वेंट फॉर द समरी, मतलब अगर आप पीआईबी में जाएंगे, मतलब जस्ट यू सर्च इन द पीआईबी और देयर यू गेट द समरी, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड द समरी एंड उससे भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते आई थिंक दैट्स रियली गुड थिंग जो प्रखर ने आपको बताया, बिकॉज ही कैन बी अ वेरी रियली गुड एस्पिरेंट फॉर दोज पर्सन जिन्होंने सारा कुछ खुद किया। देखो आप एक चीज, आप अगर आप एस्पिरेंट हैं हु इज टारगेटिंग दिस एग्जामिनेशन ऑफ ईओए और आई कैन से यूपीएससी, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन इज दैट सेल्फ स्टडी में जब मैं बात करता हूँ, बहुत बच्चे ना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, बट वो फिर सेल्फ स्टडी के नाम पे अच्छा मैंने यहाँ से नोट्स उठा लिए, वहां से नोट्स उठा लेता हूँ, फिर उसको एक बना के एक मिश्रण सा बना के अपने नोट्स बना लेते हैं। आप एक प्योर कैंडिडेट हो जिन्होंने सारा कुछ ही A to Z started, made the notes, and I think that is something really the students must learn from you. Now, if I talk about the next thing here with regards to जैसे आपने एग्जामिनेशन के बारे में बोला है, but I would say that in terms of your examination of IMD and EOA also, because यहाँ पे भी डिफरेंस है। EOA तो चलो हैं। कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड टू दिस यूपीएससी हो गया। जब आपने आईएमडी के बारे में सोचा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में सोचा, तो वहां पे क्या सिलेबस आपके साथ रिलेट करता था? बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे वो माइट बी थिंकिंग अबाउट दैट थिंग कि यार क्या यूपीएससी के साथ हम कोई और एग्जाम जाए, आईएमडी, या इनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं? So actually my brother is currently working as in IMD, same job, same post. So जब ये जॉब आया, जनरली ये पीरियोडिक नहीं आता, एटलीस्ट 4 5 ईयर्स में एक बार आता है, ठीक है। तो my brother told me कि इसका आया है, you should fill the form, एटलीस्ट देखे तो देखो हो जाए क्या पता। सो एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सितंबर की बात है, मतलब आई थिंक ये सितंबर में फॉर्म आया था, सो हमने भर दिया इसको, जस्ट फिल्ड इट। एंड आफ्टर मैं मतलब सितंबर के एंड में जाके, मतलब 25 26 सितंबर को मेंस खत्म हुआ था। सो उसी टाइम पे मतलब आई गॉट टू नो कि चलो अब पढ़ना है, बिकॉज इसका जो एसएससी आईएमडी में जो पूछा जाता है क्वेश्चंस जनरली, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके एप्टीट्यूड, मतलब जनरल बेसिक क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, 25 क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, एंड 100 क्वेश्चन इज टेक्निकल। तो हमने टेक्निकल फिजिक्स चूज किया था, सो आई गेव माई पेपर विद फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट। सो फिजिक्स के तो व्हाट आई डिड दैट टाइम मींस अक्टूबर नवंबर का जो पीरियड था, बिकॉज इन दिसंबर वी हैड द एग्जाम, व्हाट आई डिड,
In the morning, I used to read for 2 hours physics of 11th and 12th class. कि बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, फिजिक्स कुछ नहीं आती थी, क्योंकि 12th के बाद फिजिक्स ऐसा कुछ रहा नहीं था, इंजीनियरिंग पूरी हो गई थी एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 3 इयर्स, एटलीस्ट 7 इयर्स का गैप था. तो व्हाट आई डिड, जो बुक्स पुरानी पड़ी हुई थी, रिफ्रेशर्स वगैरह, उनको उठा के बेसिक बेसिक हमने फिजिक्स की चीजें देखना स्टार्ट की. सो फॉर 2 hours डेली फॉर 2 months आई डिड दैट. एंड अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में रिजल्ट आया मेंस का एंड आई कुड नॉट क्लियर इट. तो बहुत दुख भी हुआ ना, आई हैव टू, मींस देयर वाज अ प्रेशर कि नहीं अब तो एग्जाम क्लियर करना है. सो बट फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया मींस. सो सो यू हैव अप्लाइड फॉर एपीएफसी ऑल्सो ना प्रखर? आपने एपीएफसी भी अप्लाई किया था ईओ के साथ. मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है बिकॉज देखिए प्रेपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों. अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज इन एपीएफसी देयर आर 2 to 3 टॉपिक्स विच आर मोर दिस ईयर. But my point is that when you are preparing, when you are going for this both EOU and APFC examination, same day में एग्जाम हुए, ठीक है. सुबह EOU का पेपर हुआ, शाम को APFC का पेपर हुआ. और EOU का पेपर जैसे हमने डिस्कस भी किया, इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब हर बच्चे को प्रीवियस पेपर से देख के ये लग रहा था कि जनरली एपीएफसी पेपर इज ऑन टफर साइड, ईओयू इज ऑन लाइटर साइड. और पोस्टिंग में भी ऐसा होता है कि यार एपीएफसी है तो ज्यादा मुश्किल पूछेंगे, ईओयू में तो ठीक ठाक पूछेंगे. और जब आपने दोनों एग्जाम देखे, क्योंकि जब आपने सुबह वाला एग्जाम दिया एंड देन यू हैव टू गो फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन, सो व्हाट वाज द थिंग इन योर माइंड कि यार यही इतना मुश्किल पूछा तो अब शाम को क्या करेंगे, ऐसा कुछ था माइंड में? एक्चुअली मतलब ये बहुत बेस्ट चीज है कि आई हार्ड आफ्टर गिविंग द एग्जाम आई डोंट थिंक टू मच. आई जस्ट सिट एंड काम माई सेल्फ. आई डोंट सी कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितना क्या, मतलब आई वोंट चेक द क्वेश्चन पेपर अंटिल रिजल्ट इज आउट. पेपर दिया एंड दैट पेपर पे रखा रहेगा. आई वोंट टच दैट पेपर अगेन. जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद आई विल काउंट कि कितने मार्क्स आए थे या कितना क्या गलत किया. सो एपीएफसी के भी मार्कशीट आई थी, आई गॉट 170 मार्क्स इन एपीएफसी. सो आई थिंक मतलब ईओ में भी ऐसी के अप्रॉक्स मार्क्स आए होंगे, बट डेफिनेटली उसकी पोस्ट कम थी तो उसका कट ऑफ ज्यादा गया, सो इस वजह से नहीं हो पाया. बट एपीएफसी आई थिंक इजी था, मतलब, और हमें ज्यादा होप एपीएफसी पे थी इंस्टेड ऑफ ईओ. मतलब I was thinking कि I would able to clear EPFC because EPFC was easier comparative to this EOU, and I have no hope कि हम EOU clear कर पाएंगे. Literally I'm saying this on record कि हमें कोई hope नहीं था. But fortunately I cleared it because वही हमने बोला ना कि you don't know, क्योंकि अगर आपको difficult लग रहा है तो सबको difficult लग रहा है. अगर आपसे questions गलत हुए हैं तो सबसे question गलत हुए हैं. आप ये सोच ही नहीं सकते कि नहीं नहीं, अगर मेरा ही गलत गया, अच्छा नहीं गया पेपर, मतलब अगर आपका अच्छा नहीं गया तो मोस्टली सबका ही अच्छा नहीं गया. तो यू बी अरे दैट, कॉन्फिडेंट. आई थिंक दैट इज अगेन समथिंग दैट जो आपने सेल्फ स्टडी इतने साल की हुई है उसी के बाद इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना कि अगर आपने इतना पढ़ा है देन यू कैन जज दिस थिंग कि ओके अगर मैंने नहीं, मुझे नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आता. सो आई थिंक फॉर दैट थिंग द स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड कि जो पिछले 3-4 साल की प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस दिलवा देते हैं कि इफ आई डोंट नो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट नो, क्योंकि मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड पढ़ा ही है यहाँ से. नाउ ब्रदर इफ आई टॉक अबाउट द थिंग, देखिए ईओ में सबसे बड़ा जो आई कुड से the waiting period या. was when the result of the EOO came, because APFC EOO का रिजल्ट ऑलमोस्ट आसपास आया था. उसके बाद APFC के इंटरव्यूज जल्दी हुए. EOO को इंटरव्यू इट ऑलमोस्ट टेक अराउंड एंड अराउंड 1.5 year, ऑलमोस्ट इतना टाइम लगा उसका इंटरव्यू होने के बीच में. आई वॉन्ट टू नो दैट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इज द प्लानिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा रूमर्स चली थी इस चीज के बारे में कि शायद एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, इस जगह में कुछ हुआ है, उस जगह पे कुछ हुआ है. सो व्हाट वाज द थिंग इन योर माइंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1 to 1.5 year? फॉर्चुनेटली मतलब जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग डेट आ गई थी एसएससी आईएमडी की. तो मतलब ये हो गया कि देयर वाज अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर मी. आई डोंट हैव टू वेट फॉर इंटरव्यू सिटिंग इन माय होम. सो आई वाज इन द शिलोंग. बट मतलब आई वाज रियली वेटिंग कि होना भी चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि मतलब शिलोंग इज अ वेरी गुड प्लेस. आई वोंट से इट्स अ बैड प्लेस, बट स्टिल इट्स फार फ्रॉम माय होम. सो ऐसा लगता है कि आपको ना कि आपके घर के पास आपको मिल जाए ज्वाइनिंग. सो एक मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए ये था कि जब भी इंटरव्यू होगा आई हैव टू गिव माई 100%, क्योंकि शायद रैंक अच्छी आ गई तो शिलोंग से एटलीस्ट आपको पोस्टिंग नहीं कहीं नॉर्थ में मिल जाएगी. तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए ये भी था कि पढ़ना है, क्योंकि शिलोंग से एटलीस्ट आपको नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए है, शिलोंग से जाना है. और सेकंड ये हो गया था कि जैसे कि अब आपने बताया कि बहुत रूमर्स फैलते हैं. सो आई विल सजेस्ट एवरी स्टूडेंट कि आप रूमर्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि ना उससे आप पढ़ाई का अपना लॉस कर रहे हो. क्योंकि आप इफ यू आर कंसीडरिंग ऑन द रूमर्स एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो आप सोचो कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो व्हाई वुड आई स्टडी.
तो आप रूमर्स पे ध्यान मत दो एंड ट्रस्ट द यूपीएससी. आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी इज एट दैट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसपे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो. बिकॉज I have given three mains. I am not able to clear it. Still, I am saying you can trust this organization. Literally. क्योंकि clear ना करना because of my fault. There was something lagging in me which I was not able to clear it. बट इससे यूपीएससी के रूमर्स की वो यूपीएससी में ये हो गया वो हो गया ये करते हैं वो लोग इनट्रांसपेरेंट है फलाने का नहीं. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. इट विल टेक टाइम. पर आपका इंटरव्यू जरूर होगा. तो रूमर्स पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया. आई एम हार्डली इन एनी, मतलब अगर बहुत ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप है तो आई एम द पार्ट ऑफ दैट. और नहीं तो ऐसे जो नॉर्मल बच्चे बना लेते हैं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी टेलीग्राम ग्रुप कि वहां पे हम पढ़ रहे हैं डेली डेली मैसेज पे रिप्लाई कर रहे हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है. नो नो, जस्ट स्टे अवे. और आपको परसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में. रीड द न्यूज़पेपर डेली बिकॉज इफ नॉट द इंटरव्यू इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन अदर एग्जाम. कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा. कंटिन्यू प्रिपरेशन, रीड द इंटरव्यूज. बिकॉज इन माई इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क्ड वो पूरे साल भर के क्वेश्चन थे जो हमने प्रिपेयर किए थे. सो इट्स गुड दैट यू बी कंसिस्टेंट एंड persistent रहें, consistent रहें. that would really going to help you. Stay away from rumors and other things. एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग दैट स्टूडेंट्स मस्ट लर्न फ्रॉम हिम कि यार र्यूमर से दूर हो. और जी मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि मैंने जितने ये टेलीग्राम ग्रुप्स थे, आई वर नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग बिकॉज जनरली दिस व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सच ग्रुप्स ना, तो ज्यादा एक एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि यार पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कि चलो आपका 1.5 years एंड व्हेन द फाइनल डेट्स केम आउट, ठीक है, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन कि चलो फाइनली द डेट्स आर आउट. और क्योंकि आपने बोला कि मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि मैं शिलोंग से अपने घर के पास आऊं, बिकॉज जब आप 1 साल काम करो तो कहीं ना कहीं आप हैबिचुअल हो जाते हो उस प्लेस के साथ. जो मन में बैक ऑफ द थॉट होता है कि पता नहीं यार अब मैं, यू कैन एडजस्ट समवेयर. तो जब डेट्स आई तो व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन कि अब क्या करना है, कि भाई अब तो फिर वो दिमाग में चलने लग गया होगा ना कि मुझे घर वापस जाना है, नाउ द टाइम हैज केम. या डेफिनेटली. मतलब जब डेट्स आई थी इट वाज आई थिंक 10th ऑफ अक्टूबर को डेट्स रिलीज हुई थी, 10th और 11th अक्टूबर को. और आई सॉ कि डेट्स आ गई हैं. और एक्चुअली उस टाइम बहुत सारे काम, मतलब ऐसा था कि आफ्टर 1 मंथ 21 नवंबर को इंटरव्यू था और उस बीच हमने देखा दिवाली भी है. आई हैव टू गो बैक दिवाली. आई एम गोइंग बैक टू माई होम आफ्टर 4 और 5 मंथ. सो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगी. आई नो आई वोंट बी एबल टू स्टडी ड्यूरिंग दिवाली. सो वो भी हमें लग रहा था कि 10 days तो गए. और दैट टाइम ऑल्सो सम ऑफिशियल वर्क, हमें दिल्ली भी जाना था. तो 5-6 days वहां वेस्ट हो गए. सो इट वाज लाइक 15 days पूरे खत्म हो चुके थे इन माय होम एंड दिवाली. और आई केम बैक हियर ऑन 8th और 9th ऑफ नवंबर, केम बैक टू शिलोंग एंड आई हैव टू. और उसी बीच में देयर इज अ स्टेक होल्डर मीट इन आवर ऑफिस ऑफ 15th of November. And I was anchor in that. So I have to prepare for that also. So after 15 and 17, 20, I had the reservation to Delhi. Yeah. So means if you see कि वो dates आने के बाद और 21st तक I hardly have studied. बहुत कम हम पढ़ पाए थे. So that's why I'm saying keep away from your rumors and be persistent. अगर वो साल भर हमने पढ़ाई नहीं की होती डेट्स आने के पहले और हम इसी टेंशन स्ट्रेस में रहे होते कब डेट्स आएंगी कब आएंगी क्या करेंगे, तभी पढ़ेंगे जब डेट्स आएंगी, नहीं आएंगी पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो शायद हम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते. क्योंकि हम वो साल भर परसिस्टेंट रहे. इसलिए एक जो हम लास्ट मंथ में हम सिर्फ रिवीजन किया है, हमने जो मेरे नोट्स जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, आई हैव नॉट, हमने कोई नए आंसर्स नहीं दिए. आई हैव नॉट रिटन एनी न्यू आंसर्स, आई हैव नॉट रिटन एनी न्यू रिस्पॉन्सेस. आई जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स विच आई हैव रोट ऑन माई होल 1 year. जस्ट उनका रिविजन किया. वेन एवर आई गेट द टाइम आई विल ओपन दैट पीडीएफ इन माई मोबाइल, आई विल रिवाइज दैट, जस्ट दैट ओनली. उसी बेसिस पे आई गेव माई 3-4 मॉक इंटरव्यूज एंड द फाइनल. सो एज यू थिंक कि आपने जैसे इंटरव्यू के नोट्स बनाए थे, तो इन टर्म्स ऑफ नोट्स व्हेन यू, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी नोट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव इनकलकेटेड इन योर इंटरव्यू नोट्स, दैट व्हाट आर द थिंग्स जो अगर कोई बच्चा सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है तो व्हाट आर द पॉइंट्स ही और शी शुड हैव इन हिज माइंड कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने पास लिख के रखिए. मोस्ट ऑफ द थिंग जस्ट स्टार्ट बेसिक क्वेश्चंस. मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपके डाफ खोलिए और डाफ पे आपके नाम से लेके एंड तक आपकी जितनी भी चीजें, मेक द क्वेश्चंस. व्हाट व्हाट हाउ विल यू गिव ए इंट्रो, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू टेल देम. वो आप इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपैक्टफुल बनाइए. सेकंड, आप अपने नाम, इवन यू जस्ट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम. What is, they asked me, the first question interview would asked me when I sat on the chair, what is the meaning of your name and how do you relate with that meaning. So this is the one of the question I literally made the note of it
कि what is my meaning of my name, how do I relate with my name. So you should know the meaning from, if it has a unique name, where the origin of that name, or if you share your name with some personality, great personality, you should know that. Then your birth date, if your birth date is as it happens to be some important day, then you have to know that. So just start the def, एक एक चीज इसमें, एक एक चीज, आपका नाम, आपकी घर कहाँ पे है, where you have studied, what is your hometown, where you're from, mother's from, what your father doing, your father's name, your whole background. Make the probable question from your DAF only, and they will ask you question from the DAF. And if you're not able, so most of the questions are on my draft. I prepared the question, my mother, my father, my name, my education background, my college, and then probable question from my state, Uttar Pradesh. Then I studied in Madhya Pradesh. From the Madhya Pradesh, currently in Shillong. So from the Shillong, my job profile. So most of the questions are from that only, and my hobbies. So most of the questions from there. सो व्हेन यू हैव मेड सच अ थिंग, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि मैंने 2-3 मॉक्स दिए टू सी Mhm. वेदर आई एम ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट. सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द मॉक्स दैट यू हैव गिवन. ठीक है. एंड हाउ दैट मॉक्स हेल्प यू इन द फाइनल इंटरव्यू, बिकॉज जनरली क्या होता है, हम मॉक्स देते हैं तो आपने क्या क्या लर्निंग्स ली वहां से जो आपको लगा कि आपने एग्जीक्यूट किया और वो आपको फाइनल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प किया. और दूसरा मैं इसी के साथ पूछना कि डू यू सजेस्ट स्टूडेंट, बिकॉज इफ इज ही और शी सेल्फ प्रिपेयरिंग, does he or she should give a mock test? It should be a compulsory thing that they have to give a mock test, और या फिर बिना मॉक्स के भी काम चल सकता है. Mock test, I would suggest you definitely give. I would suggest either you preparing by your own, you should give mock, because mocks आपको एक final आपका अपना judgment evaluation मिल जाता है. You get that evaluation because third person can evaluate better than you, because there are some points which you lack. Initially, what I believe ki why I'm not able to clear in my 3 attempt, because of that only. Because I don't have any mentor, because I'm the only one who is preparing my home. I'm sitting in the four walls of my home, inside the four walls of my home. No one is evaluating me. So when there is someone to evaluate, then things improve. So I would have cleared UPSC CSE, I think, if I had some guidance or some mentor. So आपको mocks देने चाहिए. Mocks is very important, because I know when I started giving the mock interviews last year in 2023, 2023, after the result was out, in mock interviews, the interviewers suggested me that you speak very loudly and you speak very quickly. You speak very fast. You speak very quickly. So I'm not able to grasp things that they are not able to grasp. So you have to be very slow. You speak slowly, so that interview can understand what are you saying. The second thing they say, you speak very rapidly, means आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप तुरंत आंसर दे देते हो. तो it shows that you're not giving value to the question of interviewer. So once interview is asking you the question, just stop for one, or just in my mind count 1, 2, 3, 4, 5, then start your answer. So you are thinking that answer. So this is the two most important thing which I have to work upon. कि एक तो I don't have to speak very rapidly, and I have to listen to the interview before giving the answer. So these two things I improved in 1 year actually. मतलब बहुत process जो थी उसमें हमने बहुत improvement किया कि I should be calm. मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि I'm not in very hurry, I'm very calm and I'm listening to them, I'm respecting them. So this is the one thing I implemented. And मतलब nervousness आपको नहीं होनी चाहिए. तो मतलब even there was a question in my interview they asked कि बहुत ही मतलब वैसा question था कि जैसे हमने बोला कि your name is Prakhar, and what is the meaning of the name? I said that my name is uh, outstanding and eminent and fierce. So said most of the outstanding people, they do not very well in the services, but those who are not outstanding, they do very well. Those who are not academically proficient, they are not, they cannot do a good things. But जो academically proficient नहीं होते ना, they used to do very good things. So how do you relate with it? How you justify that? So this was a question very out of box. मतलब because मेरा जो पूरा डाफ है उसमें यही है कि स्पोर्ट्स आई डोंट हैव, मतलब ऐसे कोई स्पोर्ट्स हमने नहीं मेंशन किया था. जितना भी था वो एकेडमिकली प्रोफिशिएंट ही हमने मेंशन किया था कि आई हैव स्कोर्ड सच अ गुड परसेंटेज, गुड मार्क्स इन 12th, गुड मार्क्स इन माय बैचलर्स एंड देन. सो उनको लग रहा था कि इफ यू आर, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट यू एकेडमिकली प्रोफिशिएंट एट द सेम टाइम यू हैव अ गुड एप्टीट्यूड. सो इस क्वेश्चन के लिए मोस्टली ये आंसर्स वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इसको जस्टिफाई करना था. तो यही क्वेश्चन ऐसे जो पूछ लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए. और मतलब दिस वाज द थिंग.
एंड एज यू आर मेंशनिंग अबाउट योर मॉक इंटरव्यूज, तो आपको किस मॉक इंटरव्यू में लगा कि हाँ यार, जो जो चीजें कई बार होता है ना, कुछ चीजें मॉक्स में पूछी गई हैं तो वो वहां पे जाके लगता है कि एग्जैक्टली दिस इज द थिंग जो मुझे मॉक्स में बोली गई थी, एग्जैक्टली वो है। तो कोई आपके साथ ऐसी मेमोरी हुई थी इसमें पूरे में कि यार आपको लगा हाँ यार ये चीज जो मैंने देखी है ना या मुझे बताई गई है, कहीं ना कहीं वो हम्म। पैनल उसी तरह का ही मेरे सामने आया है जो मुझे जिस तरह का मैं इंटरव्यू देख के आया हूँ, तो इट इट रियली बिकम्स सॉर्ट ऑफ इजीनेस फॉर अ पर्सन देयर। जैसे हमने एजुटैप का इंटरव्यू दिया था, मोस्टली जो हमने मॉक इंटरव्यूज दिए थे उन मोस्टली इंटरव्यूज में टीचर्स होते हैं, बट एजुटैप की एक बहुत बेस्ट थिंग थी कि दे हैव द ब्यूरोक्रेट्स इन देयर बोर्ड। सो इट लिटरली गिव मी द कॉन्फिडेंस बिकॉज in front of teachers, they teachers try to find more mistakes, मतलब it's good thing actually, but फिर भी अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं ना, वो they used to think ये वाली चीज गलत है because they have a habit, आप अगर ब्यूरोक्रेट्स के सामने देख रहे हो, they will ask you questions like that only. So वो ना एक बहुत, if I am able to prove myself in front of the bureaucrats, then I have that confidence that I will give my best in the real interview, because there is bureaucrats only, the people who are there, they are bureaucrats. So यहाँ पे जो IAS थे, there was a one sir IAS and there was, I forget the other person. So उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था, they gave me good मतलब रिमार्क्स कि ठीक है, मतलब they give me something good कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर लीजिए, बाकी they told कि yeah it's good, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट कर लिया। सो लिटरली इट गेव मी द कॉन्फिडेंस, मतलब उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, बिकॉज आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, और उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था, और उसके बाद जितने में बहुत कॉन्फिडेंस हमने मॉक्स दिया, फिर कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला। सो आई गेट द गुड रिव्यू फ्रॉम दैट। तो उससे एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया था कि अगर मॉक्स में अगर अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली रियल इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग गुड। और जब आपका फाइनल इंटरव्यू, जैसे आपने कुछ चीजें शेयर की, ठीक है, आफ्टर कमिंग फ्रॉम एन इंटरव्यू, ठीक है, हम्म। वर यू रिलैक्स्ड और वर यू स्ट्रेस्ड कि नहीं यार पता नहीं कैसा हुआ है? बिकॉज दैट्स अगेन समथिंग, बिकॉज जनरली व्हेन वी गिव एवर इंटरव्यू ना, वी बिकॉज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ऑन आवर ओन वी सेल्फ जज अ लॉट कि हम्म। भाई पता नहीं अच्छा, मुझे नहीं लगा अच्छा हुआ है, मुझे लग रहा होगा नहीं, नहीं होगा। व्हाट वाज योर रिएक्शन? डू यू फेल्ट दैट कॉन्फिडेंट कि यस ओके दिस ईयर आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन? No, I don't have the, मतलब I do have the confidence that I will clear, but I don't have that. I was thinking कि रैंक पता नहीं कितनी आएगी। I was not hopeful कि 23rd रैंक आएगी। I was more like 3 डिजिट में रैंक आएगी। 2 डिजिट की रैंक I have not thought. I was thinking 3 डिजिट में रैंक आएगी, बट इतना था कि हो जाना चाहिए, बिकॉज आई गेव मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चन। और इवन ऐसा नहीं था कि हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। once they asked me one question, मतलब एंड में सर asked me, the who was the who was chairing the board, he asked me कि आप you have कि मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड है, यू हैव पीसीएम इन 12th क्लास, सो डू यू आर यू गुड इन मैथ्स? सो आई सेड मतलब आई एम नॉट, बट मतलब इतने दिन हो गए हैं, सो अब तो उतना कुछ याद भी नहीं रहा है। सो हमने कहा ठीक है, मतलब स्टिल आई सेड इन अ पॉजिटिव वे आई एम डिसेंट इन मैथमेटिक्स। सो ही सेड दैट कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? हमने कहा ओके, देन ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द सॉलिड ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, व्हिच आई हैव नो आइडिया। So I said, I sorry sir, I'm so sorry sir. So there he asked me continuously 3 questions. So उसमें मैं थोड़ा लग रहा था कि might be क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव दीज 3 क्वेश्चंस। एंड द सेकंड क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि हैव आई जस्टिफाइड दैट आंसर करेक्टली और नॉट? जैसे हुआ क्या था कि जैसे ही हम गए हैं, तो मेरा इंटरव्यू एक्चुअली जब हम एंटर किए हैं तो 12 से बढ़ गया था टाइम, 12 PM से। बट अनफॉर्चुनेटली आई सेड गुड मॉर्निंग सर। सो तो जो हेड थे, वो जो चेयर कर रहे थे, ही सेड नो इट्स नॉट गुड मॉर्निंग नाउ, इट्स गुड आफ्टरनून। और अगर नॉर्मली मतलब ऐसा हम बोलेंगे कि अगर कोई एस्पायरेंट होता तो शायद वो टेंस्ड हो जाता कि आते ही साथ देखो गड़बड़ हो गई हमसे। बट वन थिंग आई लर्न कि आई हैव टू बी काम। ये हमने मॉक इंटरव्यूज में एक चीज हमने नोटिस, मतलब सजेस्ट मैंने देखा भी था और सजेस्ट भी लोगों ने किया था कि यू शुड रिमेन काम। आपको हड़बड़ाना नहीं, इवन गलती भी हो जाए तब भी आपको काम रहना, जस्ट पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। तो इवन आई सेड गुड मॉर्निंग, गलत हुआ, हमने फिर उसके बाद गुड आफ्टरनून भी कर दिया, ओके आई एम सॉरी सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, एंड देन आई सेट ऑन द चेयर। और फॉर्मल जो बोलते हैं लोग कि आप बटन खोल लीजिए कोट की, फिर बटन बंद कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड सच थिंग। मतलब जस्ट नॉर्मल, जस्ट बी नॉर्मल, जिसमें आप कंफर्टेबल, बटन खोल के आप कंफर्टेबल हो तो बटन खोल के बटन। हाँ, बस आपको हैंड मूवमेंट्स नहीं करने, जस्ट ट्राई कि डोंट डू द हैंड मूवमेंट्स टू, जस्ट आप अपने हैंड को अपने रेस्ट पे रखिए। फिर ही स्टार्टेड आस्किंग मी द क्वेश्चन अबाउट माय नेम एंड अदर थिंग। तो ये था मतलब पूरा प्रोसेस कि टेंशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपको इंटरव्यू के टाइम पे, आपने आपको काम रखो। और इवन आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप सॉरी बोल दो, और इवन आपको वो मन में आना नहीं चाहिए, आपके अंदर उस टाइम गिल्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। भूल जाओ, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको जो बन रहा है उसको आंसर आप कॉन्फिडेंटली दो, आपके चेहरे पे एक भी मतलब परसेंट आपको उनको लगना नहीं चाहिए कि आर नॉट टेंस्ड।
So there were so many questions which I'm not able to give the answer. जैसे एक question उन्होंने घुमाया था, there was a they asked me, I wrote my hobby as a historical reading historical fictional novels. So one of the board member asked कि what is the difference between historical fictional novels and historical novels? मतलब 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 he said that all novels are fictional. आपको पर्टिकुलर लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि हिस्टोरिकल फिक्शनल नॉवल, यू जस्ट हैव रिटन हिस्टोरिकल नॉवेल्स। तो उस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरी गलती बता रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीजें, देयर वर सम थिंग्स जो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो मतलब टेंशन, बट स्टिल आई वाज लाइक कि हमने अपनी तरफ से सारा बेस्ट दिया। आई थिंक जो आपने मेंशन ही कर दिया वो चीज मैं आपसे वही पूछने वाला था अबाउट आई थिंक हिज जॉब हिज हॉबी आई बस से गई बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी इनकी reading historical fictional novels and I think that somehow has motivated you. So I would say Prakhar, because before ending the success story I just wanted to hear from you one of because we know the most depressed moment in this whole journey because बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया बट कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट हमेशा हर बंदे के लाइफ में आता है जहाँ पे बंदे को लगता है मैं टूट गया हूँ कि मैं अब खत्म है मैं नहीं कुछ कर सकता और आपने वहां से कैसे अपने आप को उठाया विद दिस हिस्टोरिकल फिक्शनल नॉवेल्स जो आप पढ़ते हो कि इनमें से कैसे आपने इंस्पिरेशन लिया कि हाँ आई कुड डू बेटर दैट समथिंग आई वांट टू नो बिकॉज बहुत बच्चे ये भी सीखना चाहते होंगे बिकॉज सेल्फ स्टडी करनी है आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अबाउट सेल्फ स्टडी बट सेल्फ स्टडी हैज सम कॉस्ट ऑल्सो सो या व्हाट वाज दैट डेफिनेटली। कॉस्ट आई वुड डेफिनेटली वांट टू हियर फ्रॉम यू फर्स्ट कॉस्ट ये हो जाता है कि नोबडी इज देयर टू इवैल्यूएट यू। मतलब आपको हमेशा लगता है आप यू विल ऑलवेज बी इन द डिलेमा, यू ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन इन माय माइंड वेदर आई एम गोइंग इन अ राइट पाथ। Until you have not cleared any exam, you people will around you, even they will think whether you're going the right path। मतलब पूरे दिन पढ़ता तो रहता है बट क्या पढ़ रहा है, मतलब इज ही डूइंग करेक्ट थिंग। चलो कोचिंग जाते हैं, एटलीस्ट देयर इज evaluation for them, there is a test series for them, somebody is providing them the marks। but when you're studying in your room, you're writing answers, there is no one to evaluate those answers। you are evaluating those answers। आपके लिए बेस्ट भी हो सकते हैं, वर्स्ट भी हो सकते हैं। So you have to keep yourself motivated. Yes, I am doing in a right path. Yeah, I'm going. So there are so many lows when you're not able to clear it. So the one of the best thing, matlab, because I read historical fiction novels, so I just find keep motivation that only. So I read so many novels, especially, and I always prefer the novel of historical personalities. I read novels about Genghis Khan, Napoleon. Then there is a one book of the last queen of Divya Chatra Banerjee, of the last queen of Punjab, Sikh dynasty, Rani Jindan Kaur। So they really kept me motivating because how the life of Genghis Khan began. That is really very, matlab, from the he rose like a phoenix from the ashes. And same means a story of Jindan Kaur is very good. Matlab, what I do, matlab, what I read from that novel, कि she was like a human, like a normal human with a fault, जो गलतियां करते हैं और गलती करने से ही सीखते हैं। She did so many mistakes in her life and she learned from those mistakes. And same was Genghis Khan, and same was Napoleon. So these novels keep me motivated. I learned from them कि someday I will always, or I will also rise like a phoenix from the ash. and I think that is something you have made you have really done is that keep learning the learning figure should be there that you have done a mistake you are learning here and now, if we conclude this thing, that is something in your mind, because I would just wanted to say that it was really nice talking to you. But if on a final conclusion, what will you suggest to the upcoming aspirants who are aspiring for the UPSC examination or preparing for this examination of EOAO or APFC examination or any examination on their own? What will be your last light of guide to them? For them, I would suggest कि be focused, persistent, and dedicated. कोई क्या बोल रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। You should keep yourself completely motivated। आपके फ्रेंड क्या पोस्ट कर रहे हैं और कहाँ घूम रहे हैं, shouldn't be bothered about those things। आपको आपकी, बिकॉज यू हैव चूजन दिस रोड, यू हैव चूजन दिस पाथ, सो इस पे चलना आपको ही है। और आपको अपने आप को इसलिए मोटिवेटेड रखना है। सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द इनर मोटिवेशन, यू शुडंट लुक फॉर आउटर मोटिवेशन, क्योंकि आउटर मोटिवेशन रीडिंग, मतलब कुछ यूट्यूब पे गए, हमने कोई मोटिवेटिंग वीडियो देख ली है, वो आपको ना कुछ घंटे मोटिवेट करेगा, कुछ दिन मोटिवेट करेगा, आपको पूरे सालों महीनों मोटिवेट नहीं करेगा। सो फॉर दैट यू जस्ट फाइंड योर इनर मोटिवेशन कि मुझे अपने लिए, बिकॉज फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, आई हैव टू डू समथिंग गुड। वो अगर मोटिवेशन आप अपने अंदर रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली एबल टू क्लियर एग्जाम। And what's next, Prakhar? Something in your mind for your families, for
एनीथिंग दैट यू हैव ड्रीम्ड दैट समथिंग कि यार अब नेक्स्ट टारगेट ही है, ये तो करना ही करना है? आई थिंक इट वुड बी यूपीएससी. CSE, IS, definitely. I hope that one day you will see me as an IS. You're taking my this success. I am sharing my success story as IS with you. I really wish for that thing. That it was really really nice talking to you, and I hope you have also enjoyed uh, Yeah, giving sharing your success story with the aspirants. And I also hope this thing that many aspirants will be getting inspired from you. कहीं ना कहीं वो आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश जरूर करेंगे. और अगर सेल्फ स्टडी की मैं बात करूं तो मैंने बहुत लोगों से सेल्फ स्टडी के बारे में बात की, बट आई थिंक प्योर जो सेल्फ स्टडी होता है ना, कि बस कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ और मैंने ही सब कुछ किया है और मेरे ही सीखा है, मैंने ही सीखा है, मैंने ही किया है. आई थिंक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट फॉर दिस एस्पिरेंट्स. Mhm. So, so thanks a lot, Prakat. Thanks a lot for